Hello everyone. Good morning to one and all. Now, as you all know, our syllabus has been done. हमारा पूरा syllabus खत्म हो चुका है. Now it's the time for revision. अब हम revise करेंगे. All of the chapters, all of the topics that you have learned in semester 2, we are going to revise it through practice sheet. मैंने in practice sheet में for your practice और फॉर योर पर्पज़ ऑफ रिविजन मैंने सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कंसिडर करके प्रैक्टिस शीट बनाया है ताकि आपको लर्न वेल में से नहीं बट अगर आप प्रैक्टिस शीट को रेफर कर लोगे तो दैट्स ऑल. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिस शीट बट बिफोर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न. तो पेपर पैटर्न जो पहले सेमेस्टर में था वही दूसरे सेमेस्टर में रहेगा सेम वे. Okay, first section belongs to seen passages, second unseen passages, third grammar portion, and the fourth will be essay writing. Okay, there will be 4 sections, section A, B, C and D. As you all know, seen passages का मतलब the name itself tells you seen मतलब देखा हुआ. That belongs to the chapter or literature which you have already gone through. है ना, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज का मतलब जो आपने कभी नहीं देखा हुआ होगा ना कि आपने पढ़ा हुआ होगा वो कहा जाता है अनसीन पैसेज. थर्ड दैट इज ग्रामर पोर्शन. ग्रामर पोर्शन में अगेन यू ऑल आर बी गिवन MCQs ओनली, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे ताकि आपको उनमें से एक करेक्ट आंसर पहचान के टिक करना है. एंड द लास्ट एज यू ऑल नो ग्रामर पोर्शन दैट इज लास्ट इज essay राइटिंग. essay राइटिंग ऑल्सो विल बी गिवन इन द ब्लैंक्स फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिस शीट. सेक्शन ए दैट इज सीन पैसेज. ऑलरेडी मैंने क्या कहा था, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा, देखा हुआ होगा. ओके, नाउ लेट्स रीड आउट फर्स्ट 1 or 2 lines so you might can get the hint. Corn or maize is known by different names. It is called corn on the cob, Indian corn or sweet corn. Now you all will give me the answer कि ये टॉपिक कौन से चैप्टर से है or else these lines are from which chapter. Yes, exactly, popcorn जो आपका सबसे पहले चैप्टर था, सबसे फर्स्ट चैप्टर था, पहला चैप्टर, दैट इज पॉपकॉर्न. तो आसानी से आपने रीड किया होगा फुल चैप्टर और इफ नॉट ऑल्सो तो अगेन यू आर गोइंग टू रीड आउट. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. नाउ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ब्लैंक और ईच क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट व्हाट इज पॉपकॉर्न. तो आपको क्या करना है, 2 ऑप्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको टिक मार्क करना है. बट बिफोर दैट अगर आपको आता है विदाउट रीडिंग देन इट्स वेल एंड गुड, बट इफ नॉट देन यू मस्ट हैव टू रीड आउट द कॉम्प्रिहेंशन और एल्स द पैसेज फर्स्ट. ओके, आपको पहले पैसेज रीड करना पड़ेगा पूरा और आपको आंसर उन पैसेज में से ही मिल जाएगा. For example, moving on to the second question, what are some different names of corn? Corn के अलग अलग नाम कौन से हैं? तो now come to the passage. Passage की second line read करो. It is called corn on the cob, Indian corn और sweet corn. तो ये हो गए corn के rest 3 और else और 3 नाम. Now again come to the second question, that is what are some different names of corn? Now option A is the correct answer. Corn on the cob, Indian corn and sweet corn. मिल गया आपको आंसर पैसेज में से ही. Yes. Likewise, you have to look out for the answer from the passage. आपको पैसेज में ढूंढना पड़ेगा आंसर. Okay, rest of the questions you have to try on your own. ताकि आपको पता चले कि आंसर्स कैसे सर्च करने हैं. How you have to search out for the answers. I have already given the answer key, but before that, before looking to the answers, you have to try on your own. Yes? Second, read the following poem. Second क्या है? Poem है.
Let's read out. I have a goat. He is a funny pet. He'll eat anything. He can get crunchy hay, modeling clay, grandpa's socks, moss on rocks, leaves on trees, beans and peas, labels on cans, greasy pens. Now this is a poem. Let's move on to the questions. Tick the correct option to answer each question. Again आपको क्या करना है? Correct answer. Read out the poem first and look out for the answers from the poem itself. First, name the pet or animal in the poem. Now, first line itself tells you the name of a pet. Pet मतलब जो animal जिसके बारे में ये poem दी गई है. तो in the first line of the poem itself आपको आंसर मिल गया. Read out. I have a goat. देखो मिल गया ना आंसर. तो ऑप्शंस क्या है? A cat or a goat. तो correct answer is a goat. Second, what has been said about the goat? गोट के बारे में क्या कहा गया है? तो अगेन रीड आउट पोएम. सेकेंड लाइन में ही आंसर मिल गया. लुक आउट. ही इज फनी. तो ये गोट कैसा है? अ फनी पेट और अ हंग्री गोट. विच वन इज करेक्ट? यस, अ फनी पेट. Likewise, you have to complete the rest of the questions. Yes. Moving on to the third question, third passage. Read this passage. The last bell rang. Children came running and shouting out of the school gate. Sonu didn't like running and shouting. He came walking gently and slowly. Meow. Sonu heard it and stopped. Now, guess this passage from which topic? Yes? Sonu वाला चैप्टर. Yes, everyone? सबको याद आ गया? Now, take the correct alternative. You have to go through the full passage. आपको पूरा passage read करना है and then move on to the question वाला section. Okay? First, children came running and shouting out of the. Now, let's read out the passage again. The last bell rang. Children came running and shouting out of the school gate. देखो पैसेज के सेकेंड लाइन में itself you have got the answer. So, किसके बाहर रनिंग एंड शाउटिंग करके निकले? स्कूल गेट के बाहर से. सेकेंड, सोनू हर्ड द साउंड ऑफ अ लिटिल. सोनू ने किसकी आवाज सुनी थी? अगेन गो इन द चैप्टर एंड रीड आउट. मियाओ. सोनू हर्ड इट एंड स्टॉप्ड. तो मियाओ कौन बोलता है? कैट. बट यहाँ पे लिटिल कैट थी, दैट इज किटन. So, the correct answer is kitten. How was the little kitten? Kitten कैसा था? It was like a little ball of fur. देखो चैप्टर का नाम भी मिल गया, The Little Ball of Fur. Yes, ये आपने सारे के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द पैसेज इफ यू कांट फाइंड द आंसर. क्योंकि ये सीन पैसेज है तो आपको आंसर्स ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि काफ़ी आंसर्स आपको ऑलरेडी पता होगा. बट व्हेन इट कम्स टू अनसीन पैसेज तो आपको प्रैक्टिस रखनी है रीडिंग की, है ना. क्योंकि अनसीन पैसेज आपने जो कभी नहीं पढ़ा होगा तो उसके आंसर्स इट्स नॉट पॉसिबल कि यू माइट बी नोन डायरेक्टली. तो आपको पैसेज पढ़ना ही होगा. लाइकवाइज सीन पैसेज में भी सेम प्रैक्टिस रखो पैसेज पढ़ने की, ताकि आपको आंसर्स ईजिली एंड विदाउट मिस्टेक, विदाउट डाउट करेक्ट आंसर आपको मिल जाए. सो रेस्ट ऑफ द आंसर्स और क्वेश्चंस यू हैव टू डू ऑन योर ओन. इन द लास्ट पैसेज, रीड दिस पैसेज. लिटिल रेड hen lived on a small farm. Now guess the topic, guess the chapter. लिटिल रेड hen, है ना. अब सबने पढ़ी थी ये स्टोरी. लिटिल रेड hen. A duck, a cat and a dog also lived with her. उसके साथ और कौन कौन रहता था? A duck, a cat, a dog also lived with her. Rest of the passage you have to read out. क्योंकि अगर मैं पूरा पैसेज रीड करने जाऊंगी तो हमारी प्रैक्टिस शीट खत्म ही नहीं होगी. You just have to learn the the pattern of reading the passage. आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर सर्च करने के लिए वापस से पैसेज पढ़ो. अगेन सेकेंड क्वेश्चन पे जाओ, अगेन पूरा पैसेज पढ़ो, आपको आंसर्स पैसेज में से ही मिल जाएगा. यस. क्वेश्चंस. हु लिव्ड ऑन द स्मॉल फार्म? देखो कितना इजी है. स्मॉल फार्म में कौन रहता था? सी इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ यू गॉट द आंसर. लिटिल रेड hen lived on a small farm. मिल गया आंसर. कौन रहता था स्मॉल फार्म में?
Little red hen. Second, who all lived with little red hen? Who all मतलब लिटिल रेड hen तो रहता ही था, बट उसके अलावा उसके साथ और कौन रहता था? Again go to the passage. A duck, a cat and a dog also lived with her. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, a duck, a cat and a dog. Look, again you got the answer from the passage. Rest of the questions, try yourself. Section B, unseen passage. अभी आ गया अनसीन पैसेज, जो आपने कभी नहीं देखा हुआ या तो पढ़ा हुआ होगा, तो रीड इट केयरफुली फर्स्ट. आपको पूरा पैसेज पहले समझ लेना है. ग्रैंडपा लिव्स ऑन अ फार्म. ही हैज़ मैनी एनिमल्स ऑन हिज फार्म बट लाइक्स हिज हॉर्स द बेस्ट. मतलब ग्रैंडपा एक फार्म में रहते थे, उसके पास मैनी एनिमल्स मतलब बहुत सारे जानवर थे फार्म में, बट उसका घोड़ा ही पसंद था. हॉर्स एट द बेस्ट. बहुत सारे जानवर थे, उसमें से उसका मन पसंद था हॉर्स, सबसे पसंदीदा. हिज हॉर्स इज ब्राउन विथ स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड अ लॉन्ग टेल. उसके हॉर्स का कलर क्या था? ब्राउन. उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और अ लॉन्ग टेल मतलब पूंछ थी. Grandpa likes to ride on his horse every morning. Then he pets his horse on the back and gives him a hug. तो ये था एक ग्रैंडपा और उसके हॉर्स के बीच की स्टोरी. Short and a simple story. Now, move on to the questions. Who lives on a farm? Again, it's an easy answer. Farm में कौन रहता था? Grandpa. He has many dash on his farm. Now look. This question is asked in a blank form. Fill in the blank form. है ना? तो पूरी की पूरी लाइन देख लो आप, सेम डिट्टो मिल जाएगी पैसेज में से, बिकॉज इट्स एन ब्लैंक पैटर्न. ही हैज़ मैनी डैश ऑन हिज फार्म. अगेन कम टू द पैसेज. ही हैज़ मैनी एनिमल्स ऑन हिज फार्म. सेकेंड लाइन पढ़ो. ही हैज़ मैनी एनिमल्स ऑन हिज फार्म. सो द करेक्ट आंसर इज एनिमल्स. Likewise, complete the rest of the questions. Moving on to the second question. Read the following passage. If not, आपको ये प्रैक्टिस शीट मैं लाइव सेशन में भी रिपीट करवाने वाली हूँ. Today only we are going to cover half of the practice sheet. हम सिर्फ हाफ करेंगे ताकि आपके लिए easy हो जाएगा. In 2 parts we are going to complete the practice sheet. आज जो हमने वीडियो बनाया है उतना हम लाइव सेशन में भी करेंगे, इसीलिए आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा. यस. सेकेंड क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग पैसेज. वी मूव थिंग्स बाय पुशिंग देम और पुलिंग देम. ओके, सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, आपको पुशिंग एंड पुलिंग समझना है. व्हाट डू यू मीन बाय पुश? दैट इज धक्का देना. धक्का है ना. पुश मतलब उसको धक्का देना. पुलिंग मतलब खींचना, अपनी ओर खींचना. दैट इज द मीनिंग ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग. पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना. ओके. हैवी थिंग्स आर हार्ड टू मूव. हैवी थिंग्स मतलब जो भारी भरकम चीज़ें होती हैं उसको मूव करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है. समटाइम्स व्हेन वी वांट टू मूव द थिंग्स वी पुश देम. मतलब जब हमें चीज़ें हटानी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको पुश करते हैं, मतलब उसको धक्का देते हैं. पुश दैट इज धक्का देना. टू मूव द थिंग्स मतलब वो चीज़ को हटाने के लिए. व्हेन वी पुश थिंग्स वी मूव देम अवे फ्रॉम अस. तो जब हम वो चीज़ को मूव यानी धक्का देते हैं तो वो चीज़ हमारे से दूर चली जाती है. क्यों? क्योंकि हम उसको धक्का देते हैं, तो बट ऑब्वियस वो चीज़ हमसे दूर हो जाएगी. व्हील्स मेक इट इजियर टू पुश हैवी थिंग्स. बट जब भारी भरकम चीज़ रहती है तो अगर उनमें व्हील्स लगे हुए रहते हैं तो वो ईजी हो जाती है मूव करने के लिए. engines help to push big and heavy things. तो जो engines रहते हैं वो हेल्प करती है चीज़ें हैवी और बड़ी चीज़ों को मूव करने में. Sometimes when we want to move the things we pull them. Not necessary कि जब हमें चीज़ हटानी होती है तो हमें
कोई कोई चीज़ ऐसी रहती है जो हमें अपनी ओर लानी रहती है, नॉट नेसेसरी कि हमें दूर रखनी होती है. जब हमें चीज़ें अपनी ओर लेनी होती है तो वी पुल देम मतलब हम खींचते हैं उसे अपनी ओर. When we pull things मतलब जब हम उन चीज़ों को खींचते हैं, we move them towards us, तो वो हमारी और हम खींचते हैं, है ना. पुश में क्या होता है, हम धक्का देते तो वो हमसे दूर चली जाती है. बट व्हेन वी पुल द थिंग्स मतलब जब हम खींचते हैं तो वो चीज़ें हमारी ओर आ जाती हैं. व्हील्स मेक इट इजियर टू पुल हैवी थिंग्स. सेम वे व्हील्स जो रहती है वो खींचने में आसान हो जाती है चीज़ों को. अ कार्ट हैज़ व्हील्स. कार्ट मतलब जब आप मॉल में जाते हो तब कार्ट्स रहती है ना, जिनमें आप सामान स्टफ करते हो, सामान को इकट्ठा करते हो. मॉल में क्या रहती है, 4 पहियों वाली ट्रॉलीज. यस, दैट्स कॉल्ड द कार्ट इन विच यू स्टोर सम स्टफ. तो उनमें अगर व्हील्स लगे हुए रहते हैं तो कितनी वो आसान हो जाती है ट्रॉली मूव करने में, है ना. सेम वे यहाँ पे भी अप्लाई होती है. पुल एंड पुश. अगर आप वो ट्रॉली को आगे चलाते हो तो वो पुश माना जाता है, बट वो ट्रॉली को आप अगर अपने और खींचते हो तो दैट इज पुल, है ना. सो कम टू द क्वेश्चन पार्ट. टेक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ईच क्वेश्चन. हाउ वी मूव द थिंग्स. हम चीज़ों को कैसे मूव करते हैं, बाय पुशिंग देम और पुलिंग देम. या तो पुश करके या तो हमारी तरफ खींच के हम चीज़ों को मूव करते हैं. सेकेंड, व्हेन वी पुश थिंग्स वी मूव देम अवे फ्रॉम अस. देन इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट, ट्रू और फॉल्स. आपको ये आंसर ट्रू और फॉल्स में देना है. इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि हम जब पुश करते हैं यानी धक्का देना तो वो हमसे दूर चली जाती है थिंग्स. थर्ड, when we pull things we move them towards us मतलब हमारी ओर. pull मतलब हमारी ओर खींचना. then it's also correct, it's true. Likewise you have to complete the rest of the questions. Third, read the following passage. Arya went to the park with her mom. She liked playing hide and seek. hide and seek मतलब आप खेलते हो ना घर पे भी, हाइड एंड सीक मतलब एक जन डेन देता है और बाकी के सारे लोग घर में छिप जाते हैं और फिर उसको ढूंढ के पकड़ना है. दैट इज कॉल्ड हाइड एंड सीक वाला गेम, है ना. तो वो और सारे चिल्ड्रन क्या करते हैं, पार्क में हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं. हर फेवरेट थिंग टू डू एट द पार्क वॉज टू गो डाउन द स्लाइड. आप स्लाइड पार्क में करते हो ना, तो उसकी भी फेवरेट थिंग थी द स्लाइड. शी ऑल्सो लाइक्ड when her mom helped her on the swings. मतलब झूला झूलने में उसकी मॉम उसकी हेल्प करती है. Now coming to the questions. Arya went to the. आर्या कहाँ गई थी? Read out the first line. Arya went to the park with her mom. आर्या कहाँ गई थी? पार्क में. See, the answer is park. Second, she went with her. वो किसके साथ गई थी पार्क में? उसकी मॉम या डैड? Yes, mom. So again you have to read out the passage to search the answer. Rest of the questions you have to do on your own. Moving on to the last unseen passage. Read the following passage. When I wake up in the morning, I go downstairs and eat breakfast. Now what is to go downstairs? मतलब नीचे जाना. अगर आपका रूम ऊपर होता है तो आप नीचे जाते हो इन द लिविंग एरिया, तो आप डाउनस्टेयर्स बोलोगे क्योंकि आप नीचे जा रहे हो. बट अगर आप लिविंग एरिया से ऊपर के रूम में जा रहे होते हो तो आप क्या बोलते हो? अपस्टेयर्स, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपवर्ड्स, है ना. आप ऊपर जा रहे हो इसीलिए आप अपस्टेयर्स बोलोगे. बट इन दिस पैसेज और इन दिस लाइन्स, whoever wakes up in the morning goes downstairs. वो नीचे जाता है ब्रेकफास्ट के लिए, इसीलिए downstairs that means going downways. I like to have milk and bread butter for breakfast. Milk gives me lots of energy. Next I put on my clothes. Then I brush my teeth and wash my face. After that I put my lunchbox in my school bag and wait for mom to take me to school. So put these sentences in order by numbering them 1 to 5.
तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से फर्स्ट आपको ब्लैंक दी जाएगी, ओके, ब्लैंक स्पेस, यानी उसमें आंसर्स या नंबर्स कुछ भी नहीं दिया होगा. ओनली द सेंटेंसेस मस्ट बी गिवन, सिर्फ सेंटेंसेस है. तो आपको क्या करना है, पैसेज में जो स्टोरी है और जो सीक्वेंस है उसी के हिसाब से आपको इसको नंबर देना है 1 to 5 से. यानी फर्स्ट चीज़ क्या करते हैं, पहले सुबह उठते हैं, है ना, तो उसको हम नंबर 1 देंगे. नेक्स्ट क्या करते हैं, उठने के तुरंत बाद ही गोज डाउन स्टेयर्स एंड ईट ब्रेकफास्ट. सेकेंड वो नाश्ता करते हैं, तो आप सेकेंड नंबर दे दोगे आई ईट ब्रेकफास्ट. वैसे ही आपको सारी सीक्वेंस कंप्लीट करनी है. यू हैव टू नंबर देम बाय पुटिंग 1 to 5. जो सबसे लास्ट चीज़ करते हैं वो हम उसको 5 नंबर देंगे. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द बॉय ईट फॉर ब्रेकफास्ट. जो लड़का है वो ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, उसमें वो क्या खाता है, मिल्क एंड ब्रेड बटर. Okay, you have to search the answer from the passage, but first for that you have to read out the passage carefully. So ये हो गया हमारा सेक्शन A और सेक्शन B, सीन एंड अनसीन पैसेजेस. मैंने यहाँ पे 4 पैसेजेस डाले हैं फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, बट इन योर एग्जाम यू ओनली हैव टू ऑप्ट फॉर 1 पैसेज आउट ऑफ 2. सेक्शन C, ग्रामर. टिक द करेक्ट ऑप्शन. अब आ गया हमारा सेक्शन C, ग्रामर पोर्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. गिव द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स. तो हमने याद है स्पेशल वर्ब्स के शॉर्ट फॉर्म्स पढ़े थे, है ना. तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन किया है सेंटेंस में से, उसका आपको शॉर्ट फॉर्म बताना है करेक्ट. नाउ इट इज रेनिंग, देन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज इट्स. It apostrophe S. Second, you are telling lies. Then the correct option is you apostrophe RE, your. Third, he is having lunch. Correct option is he apostrophe S is the correct short form of he is. Fourth, she is making a doll. Then the short form of she is she apostrophe S. Likewise, from 5 up till 9th one, आपको up till 9 तक आपको शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं. किसके, जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसके ही शॉर्ट फॉर्म्स. यस, मूविंग ऑन डायरेक्टली टू द 10th क्वेश्चन. वी आर प्लेइंग फुटबॉल. वी आर प्लेइंग फुटबॉल. तो 10th भी सेम है, शॉर्ट फॉर्म ही है, बट उसमें मैं अंडरलाइन करना आई फॉरगॉट. तो वी आर का शॉर्ट फॉर्म आपको बताना है. तो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वी आर इज वी अपॉस्ट्रोफी RE. मूविंग ऑन टू द 11th. आर यू टेलिंग द ट्रूथ. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर द क्वेश्चन विथ यस. तो आपको क्या करना है, रिमेंबर द टॉपिक. आपको वो टॉपिक याद है, answer the questions with yes or no. Yes or no questions is the topic. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे yes से आपको आंसर देना है. Are you telling the truth? Then the correct answer is yes, I am. मैंने क्या कहा था, आर यू का जहाँ भी आप आर देखते हो और यू देखते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आई एम में. आर यू बिकम्स आई एम. यू का आई हो जाएगा, आर का एम बन जाएगा, है ना. यू का आई बन जाएगा, आर का एम बन जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज यस, आई एम. 12th, इज रिया अ गुड गर्ल. क्या रिया एक गुड गर्ल है. देन द करेक्ट आंसर इज यस, शी इज. रिया की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, शी. यस, शी इज. 13th, can birds sing songs? Again you have to answer this question with yes. But yes से तो आप लिख लोगे, but यहाँ पे also you have to mark the word birds. It comes with S, यानी ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में. तो जहाँ भी आप प्लूरल फॉर्म देखो with S, सीधे ही मैंने क्या कहा था, क्या लिख देना है, they. We are going to use they. तो क्या करोगे आप, करेक्ट आंसर इज यस, दे कैन.
क्यों? क्योंकि birds है, सिर्फ bird नहीं है, it is birds. Therefore, yes, they can is the correct answer. Likewise, from 11 to up till 20, you have to answer the question with yes or no. From 11th to 15th यानी 5 ऑप्शन जो है वो yes के साथ जवाब देने हैं. But from 16 to 20, you have to answer with no. No के साथ जवाब देना है. For example, taking the 16th option, are you making a noise? Again देखो यहाँ पे are you आया, तो are you का सीधा ही बन जाएगा I am, है ना. हम आंसर I am से देंगे. क्यों? क्योंकि आपको पूछा जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या कहोगे? मैं. यू की जगह पे आप मैं यूज करोगे, है ना. सो आंसर विथ नो. तो नो आई एम नॉट. नो आई एम नॉट. आर यू मेकिंग अ नॉइज? क्या आप शोर मचा रहे हो? तो आप क्या बोलोगे? नो आई एम नॉट. लाइकवाइज आपको सारे क्वेश्चंस नो के साथ जवाब देने हैं. 21st, choose the correct word for each blank. Now remember who, what, where, है ना. who, what, where. कुछ याद आया? To ask the information, to ask for the place, है ना. This is the same. ये टॉपिक सेम है. Now dash are you. तो this belongs to person. This belongs to person. That is why मैंने क्या कहा था? Who used for person, what is used for to ask the information, and where is used for the place. तो the correct option is who. आप कौन हो? Who are you? Second, dash does she live. मतलब कहाँ पे रहते हो? तो place यानी where. So the correct option is where. 23rd, dash is he eating. तो वो क्या खा रहा है? What. तो मैंने क्या कहा था? What is used for information. क्या खाना खा रहा है? That is what. Likewise, 24th and 25th, you have to do the same way. Now, from 26th to 30, आपको क्या करना है? Identify the correct question. तो ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, बट उन दोनों में से आपको सही क्वेश्चन का पैटर्न बताना है. कौन सा सही पैटर्न है? तो मैंने क्या कहा था? ऑलवेज द क्वेश्चन वर्ड्स एंड स्पेशल वर्ब साथ में होंगे. ऑलवेज क्वेश्चन वर्ड्स एंड स्पेशल वर्ब्स. तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या है? ओनली 3 जो हमने ऊपर पढ़े, हु, व्हाट, वेयर. ये हो गए क्वेश्चन वर्ड्स. बट आपको सही क्वेश्चन अगर पहचानना है, सही पैटर्न, तो ऑलवेज रिमेंबर और कीप इन माइंड क्वेश्चन वर्ड्स और स्पेशल वर्ब्स हमेशा साथ में होंगे. वो दोनों साथ में ही रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे. तो नाउ 26th ऑप्शन देखो. आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन. हु इज दैट मैन और हु दैट मैन इज. तो क्वेश्चन वर्ड्स तो आप तो पता चल गया, हु है दोनों में. बट स्पेशल वर्ब को देखो. तो टू मेक इट मोर इजियर मैंने स्पेशल वर्ब को अंडरलाइन कर दिया है. आपके लिए इजी रखने के लिए मैंने स्पेशल वर्ब को अंडरलाइन कर दिया है. द स्पेशल वर्ब इज. तो हु इज दैट मैन. मूविंग ऑन टू द 27th ऑप्शन. अगेन आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन. आपको सही क्वेश्चन पैटर्न पहचानना है. व्हाट आर यू डूइंग और ऑप्शन बी व्हाट यू आर डूइंग. तो पहले क्वेश्चन वर्ड्स को पहचान लो. दोनों में व्हाट तो ऑलरेडी है. अभी स्पेशल वर्ब को साथ में रख दो. स्पेशल वर्ब आपके लिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है टू मेक इट इजियर. स्पेशल वर्ब है आर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज क्वेश्चन वर्ड और स्पेशल वर्ब दोनों साथ में रहेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग. 28th. Identify the correct question. Again, who that boy is or option B, who is that boy. Question word and special verb will always remain together. So, who is that boy is the correct answer.
Likewise, 30th तक 30 तक क्वेश्चन वर्ड्स एंड स्पेशल वर्ब्स को साथ में रख के आप सही क्वेश्चन पैटर्न लिखो. सो द करेक्ट आंसर विल बी क्वेश्चन वर्ड्स और स्पेशल वर्ब जो साथ में होंगे वही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके, सो वी विल कीप दिस प्रैक्टिस शीट अप टिल हियर ओनली. हम 30th ऑप्शन फ्रॉम दी सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन यहाँ तक ही रखेंगे और लाइव सेशन में भी ऑल्सो वी आर गोइंग टू रिवाइज अप टिल हियर. यस, हम नेक्स्ट यानी 31st से लेके जो लास्ट का ऐसे पार्ट है वो सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. सो फॉर नाउ कंप्लीट द प्रैक्टिस शीट अप टिल हियर. ओके, so complete the practice sheet and have a nice day.